Hello, so this is second episode of Ryan Talks on Yap with Ryan, and we are back with another yapping session of mine. And today we have a little bit of a changed background. Today we are at Nani's home, so story time. So I wanna tell you about the story when I met like my ex, and which was actually one of the best times of my life, but it did definitely turn into one of the most tragic and the worst times of my life. But okay, I'll tell you definitely the good part because I'm all about the good things right now. Even though I am not okay, I'm gonna try to tell you the good part of it. Okay, so me and my ex were basically in a long distance relationship from for around 7 months, and as per my thinking and as per what I have seen him and what was happening, I was the only person madly in love. The only person who was always thinking about him, the only person who was always so much crazily in love. But isn't that how it's always been? Only one person in love? So, yeah, my story is also like that. So, welcome to episode 2 of Ryan Talks, and today we're going to talk about how I met my ex. Uh, so, one bandhani car. Okay, so I met my ex basically in the month of April when it was Gudi Padwa, and I mean, half of you guys who are following me or who must be seeing me, they must be knowing that I'm actually a Maharashtrian as well from my mother's side. I am a Maharashtrian, so we celebrate Gudi Padwa, and Gudi Padwa ke din pe, before Gudi Padwa, these people like he was from Nift Shillong, so and I'm from Nift Daman, so Gudi Padwa ke kuch din pehle I sent him a request essay to make connections, nothing more than that. I didn't even know at that time what my sexuality was. So I just sent him a request to, I basically sent him a request to just, make connections and everything, not to make him my boyfriend or anything. I just sent him a request to, क्या कहते हैं ऐसे make connections and everything. तो वो connection के उसमें what happened was I made connections and all. उसमें what happened was कि he replied to one of my friends' stories. Like I had posted my friend ka reel. Like all my friends were basically all micro influencers, and this is not working. So all my friends and everyone basically we are micro influencers, so we make content and we share each other's content on each other's pages. So I shared my friend's content on my page, so he replied to that reel, okay, and he replied to that with something that, wow, what a crazy reel, and I need to remake this. And I was like, I did not know that this guy is texting with the intentions of dating me. I did not know ऐसा वैसा कैसा है. So I तो just went with the flow. And then that time I was actually living in this apartment in Vapi, where there was like no person in the sense कि वहाँ पे कोई ज़्यादा था नहीं, कोई ज़्यादा रहता नहीं था वो flat में भी. It was only me, मेरा flat में I used to stay alone, and there were just like my neighbors and everything. तो वो टाइम पे आई वाज प्रीटी अलोन, तो ये बंदा बात कर रहा था, तो आई यूज्ड टू टॉक विद हिम पूरा पूरा दिन एंड एवरीथिंग. अब पूरा पूरा दिन एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू टॉक, फिर थोड़ा थोड़ा आई डोंट नो आई स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू हिम बिकॉज माय सेक्सुअलिटी आई हैड नोन, बट इट्स जस्ट दैट द प्लेस दैट आई एम brought up in is not really open. It's very homophobic, so you can't really accept who you are in this place. So क्या है ना कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट, बट क्या हुआ कि हमारा निफ्ट का ना देयर इज दिस एनुअल इवेंट कॉल्ड एज कॉन्वर्ज, नहीं स्पेक्ट्रम सॉरी, विच हैपेंस इन लाइक योर ओन कैंपस. माई निफ्ट के फॉलोअर्स मस्ट बी नोइंग दिस. लाइक अगर कोई निफ्ट का देख रहा है इस चीज़ को, देन आप लोगों को तो पता होगा ना स्पेक्ट्रम क्या होता है. तो स्पेक्ट्रम का टाइम था, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तब, तो उसके साथ आई वॉज जस्ट टेलिंग हर कि इज दिस पॉसिबल कि आई माइट बी अट्रैक्टेड टू हिम. तो शी इज लाइक हाँ कुड बी. एंड वो टाइम पे ना कैसा था कि आई वॉज नॉट वेरी ओपन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली, एंड आई हैड नेवर इवन ट्राइड इट. एंड द कैंपस भी मेरा इज़ वेरी छोटा, तो मुझे कुछ ऐसा सा आइडिया वाइडिया था नहीं कि इट इज़ ओके एंड एवरीथिंग. हाँ, इट इज़ डेफिनेटली ओके. आई वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि बीइंग वट एवर योर सेक्शुअलिटी इज़ फाइन, दैट्स नॉट एन इशू. But when it came to my own self, I didn't know कि it would be this easy. But my friend made it really easy for me. She made it very easy with me in the sense कि she used to positively affirm me कि the fact कि Ryan, it's okay, it's nothing wrong to be from the community, you can be from the community, ये वो ऐसा वैसा, okay. So she used to say ऐसा सारा stuff to me, तो मैं बहुत बहुत खुश था, okay. उसने she told me कि बहुत अच्छे से मुझे
एक तो आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल इन माई लाइफ, ओके, वट एवर टाइम आई स्पेंड विद द पीपल, इवन इफ वी डोंट एंड अप टुगेदर, वट एवर आई टाइम स्पेंड विद देम, दैट इज द बेस्ट ओनली. ऐसा नहीं होता कि वो टाइम भी गंदा होता है. वो दैट ओनली हैपेंड विद माई अभी रिसेंट वाला एक्स. तो व्हाट हैपेंड इज कि माय फ्रेंड टोल्ड मी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से, इफ यू वांट यू लाइक हिम एवरीथिंग. एंड स्पेक्ट्रम के सेकंड डे पे ना हमारा ये था, फैशन शो था. एंड हमने पूरा नेब्यूला का किया था. आई विल ट्राई टू अटैच अ पिक्चर हियर ऑफ हाउ वी वर ऑल लुकिंग, एंड लाइक अगर इफ आई हैव द वीडियो, आई डोंट नो, अगर होता है तो यू विल सी इट, नहीं तो नहीं देखोगे. तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने ना, वी डिड दिस होल फैशन शो एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज एट द पीक ऑफ माय फीलिंग्स एट दैट टाइम, बिकॉज वो बंदा बहुत, आई मीन वो इतना प्यार से बात करता था, वो इतनी क्यूटी क्यूटी चीजें बोलता था. एंड मुझे तो कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि वाओ इतना सारा फन मी. अब आई नो माई वैल्यू, माई वर्थ एंड एवरीथिंग, वो सब, दैट ऑल आई नो. बट वेन समबडी एक्चुअली इज इन लव विथ यू एंड एवरीथिंग, तो वो ना बहुत अलग तरीके से तुम्हें कुछ चीजें फील करवाते हैं. और ये सबके साथ होता है, नॉट जस्ट विथ मी. बट उसने मुझे बहुत प्यार से और अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की थी एंड समझाया था. तो जब उसने मुझे वो इतने प्यार से किया था, मैं बहुत क्रेजीली उसके पीछे पागल हो गया था. आई वाज लाइक फक लॉन्ग डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, मुझे बस वो आदमी चाहिए चाहिए एंड चाहिए, ऐसा हो गया था मेरा. तो स्पेक्ट्रम वाले रात जब हमारा फैशन शो खत्म हुआ, वी एक्चुअली वन द फर्स्ट रनर अप प्लेस इन दैट फैशन शो. ओके, एंड उसके सारे आउटफिट्स हमने खुद ने बनाए थे. वी यूज्ड टू स्टे इन द कॉलेज टिल 8 एंड 9 इन द नाइट, इवनिंग में 8-9 बजे तक हम रह के पूरे आउटफिट्स बनाते थे. तो वो बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा, वो एंटिसिपेशन दैट तुम पूरे दिन काम करते हो और फिर घर जाके तुम वो एक पर्सन से बात करोगे, दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस क्रेव. हाँ या ना, लाइक, हाँ, एवरीबडी डज. तो आई वॉज ऑल्सो क्रेविंग अबाउट दैट एट दैट टाइम. ओके, तो वेन आई वॉज एक्चुअली क्रेविंग अबाउट इट दैट टाइम, तो वो था मेरे साथ तब. एंड वो मुझे बहुत स्पेशल फील करवाता था हमेशा. ये तो टूवर्ड्स द एंडिंग और आई डोंट नो व्हाट टाइम पीरियड उसके साइड से सारी चीजें गॉट बैड एंड एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ, दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम. बट ये जो इतना सारा टाइम वी यूज टू स्पेंड टुगेदर स्पेक्ट्रम के टाइम पे, बहुत बहुत प्यार से, ही यूज टू कीप मी बहुत प्यार से. देन वन डे स्पेक्ट्रम मेरा खत्म हुआ, फैशन शो में हम सेकंड रनर अप जीते. एंड देन आई वाज लाइक, आई टुक माय फोन एंड आई कॉल्ड हिम. And I was like, and he was really drunk that night. And then he was like, "Ki, hello." I'm like, "Hello." And then he's like, "Yes." I said, "I won fashion show." And he's like, "Wow, what the fuck?" And like, बहुत बात नहीं हुई, बट इतनी बात हुई. फिर घर जाके पूरे टेक्स्ट पे एंड एवरीथिंग वी टॉक्ड, एंड माय पेरेंट्स वर इन दमन फॉर द शो एंड एवरीथिंग. इट वाज वेरी नाइस, दोस मोमेंट्स वर सो फकिंग गुड, आई कांट टेल यू. ओ हाउ नाइस इज इट टू बी इन लव एंड एवरीथिंग. ओके, तो वो हुआ. उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि उसके बाद वी टॉक्ड एंड एवरीथिंग. फिर ना धीरे धीरे ज्यूरीज एंड एवरीथिंग का टाइम पास में आने लगा, तो वो मुझे और हेल्प करने लगा, हम बात करने लगे. एंड देन तो वी बोथ वर लाइक कि हाँ हाँ, लाइकिंग तो है ही. फिर ना मेरा एक और फैशन शो था. आई स्टे इन यूनियन टेरिटरी बेसिकली, दमन. अभी व्हाट यू आर सीइंग ऑल दिस इज इन बड़ौदा. ओके, बड़ौदा इज इन लाइक गुजरात. तो गुजरात से थोड़ा दूर तुम जाओगे, तुम हिस्ट्री में, तुम सोशल स्टडीज में ना तुम पढ़े होगे कि देयर इज वी हैव लाइक यूनियन टेरिटरीज. तो यूनियन टेरिटरीज में एक यूनियन टेरिटरी तुमने दमन देखी होगी. तो दमन, मेरा जो निफ्ट है वो दमन में है. ओके, तो क्या हुआ कि दमन में ना, दमन के पास पास देर आर प्लेसेस विच कम अंडर द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो वन ऑफ द प्लेस दैट कम्स अंडर द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज सिलवासा. तो सिलवासा में देर वॉज दिस बुक फेयर, काइंड ऑफ वेरी बिग बुक फेयर. ओके, एक्चुअली वेरी बिग. इट वॉज लाइक, मैं खुद देख के चौंक गया था कि वाह इतने बड़े बुक फेयर. तो वही एक बुक फेयर था. तो वो बुक फेयर में ना, वो बुक फेयर था, तो वहाँ पे हम निफ्ट स्टूडेंट्स को, वी वर सपोज्ड टू डू द फैशन शो. एंड कोई था नहीं, तो दे हैड टेकन मी एज द मॉडल, तो मैं मॉडल के उसमें गया था. तो क्या था ना, फैशन शो बेसिकली 3 दिन के ड्यूरेशन में 1 दिन पे था. तो फैशन शो वाज ऑन द सेकंड डे ऑफ द 3 डे फेस्टिवल. सो सेकंड सेकंड डे पे ना, वो जो बड़े से वो एक स्टेज नहीं होता ऐसा बड़ा सा, वो स्टेज के आगे पीछे दे पुट दोस फ्लावर्स एंड एवरीथिंग. तो मैंने वो फ्लावर्स जैसे सारे प्लग किए थे, इतना पूरा गुच्छा. मैं ना इधर एक फोटो लगाऊंगा जो मैंने उसको एक्चुअली भेजी थी, तुम देखना इधर आएगा. तो वो मैंने पूरा फ्लावर एंड एवरीथिंग उसको भेज, फ्लावर्स एंड ऑल कलेक्ट किया. एंड उसको एक फोटो लिख के भेजा था कि बिकॉज यू आर नॉट हियर, आई बॉट फ्लावर्स फॉर माई सेल्फ. तो ही रोट टू मी कि ओके, इवन दो आई एम नॉट हियर, आई विल बाय यू फ्लावर्स एंड एवरीथिंग. इवन तो बाद में तो वो पूरा आदमी ही झूठा निकला, बट वो टाइम पे तो बहुत क्यूटली मुझे उसने ट्रीट किया था. फिर वो हुआ, फिर उसके बाद मे की वो
वो छुट्टी आई जिसमें मेरा ज्यूरी था, एंड वो ज्यूरी के पहले ही रात को मैंने उसको बोला कि व्हाट इफ आई टोल्ड यू आई लाइक यू, तो उसने बोला इवन आई लाइक यू। फिर 8 में या कुछ था और उस दिन हमने एक दूसरे को आई लव यू बोला था। एंड हम ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो हम एवरीडे वीडियो कॉल पे सोना एंड एवरीथिंग, इट वाज सो नाइस, सो नाइस इट वाज, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। एंड द थिंग इज ना, अगर तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस अच्छे से चलता है ना, तो वैसा रिलेशनशिप तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बट अगर तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस सही से नहीं चलता है, जो मेरा हुआ एंडिंग में, जो अगर वो नहीं चलता है सही से, तो यू विल, तुम ना घर के ना घाट के बीच के कहीं के हो जाओगे, जो मैं हूँ बेसिकली, घर का भी नहीं रहा, घाट का भी नहीं रहा, बीच में बैठा हूँ। तो वही है। बट yeah, so then he proposed to me with this whole, he made this entire video जहाँ पे वो येलो कोल्डप्ले का नहीं है सॉन्ग, तो वो he made those notes and everything, and सारे फिक तो घटिया फेक promises किए हैं, ठीक है, बट वो टाइम पे तो गिर गया था मैं, did all these fake promises and everything, but it was very nice. And yeah, so that's how I met my ex, and he is my ex today. I wanted him not to be my ex, but I can't change the nature. And all I can do is change myself. So, yeah, that's how I met my ex. Crazy story. I even traveled to Shillong for him and he came to Vadodara for me. So, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने की है, but पता नहीं उसे ब्रेकअप ही करना था एंड में. Because all men are pigs at the end of everything. Please don't cancel me. Please don't cancel me. But yeah, all the divas are going to relate to me for sure. So yeah, that was episode 2 of my Ryan talks or my yapping. And by now you must have seen how much I can yap, how much I can speak. But okay, you guys are my safe space, and I'm gonna keep yapping more and more. So if you do like my yapping, and if you do find my yapping somewhere relatable to you, do subscribe to my channel. There's gonna be a story time video every day, or I'll put a story time as much as I can, because now you guys are my only hope. तुम ही मुझे मूव ऑन कराओगे, 100% तुम ही मूव ऑन करा रहे हो मुझे। देखो अभी भी, और अभी मुझे उसकी याद ही आ रही थी, तो मैंने बोला फक इट, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। तो वही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. That's it for the episode 2 of Ryan Talks. I love you guys a lot and thank you so much for watching, if you are actually watching. Bye.